إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة معزز حاضرین اور میرے دینی و ملی بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے جو تمام مخلوقات کو پیدا کیا ہے، ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو عقل سے نوازا۔ اسی بنا پر انسان کو اشرف المخلوقات سے ملقب کیا گیا ہے، کیونکہ انسان کے اندر اچھے برے بھلے نقصان دہ فائدہ مند یعنی ہر چیز کے مابین اس کے درمیان اس کو پرکھنے اور جانچنے کی تمیز ہے، اور اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، اور کرنا بھی ہے تو کس طرح کرنا ہے، اور نہیں کرنا ہے تو کس طرح نہیں کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں ہم انسان سمجھ سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو سیکھیں۔ یہ تمام چیزیں اس کو کرنا ہے نہیں کرنا ہے، ان تمام چیزوں کی تعلیم گیان حاصل کرنا ہے، لیکن ہم اگر چاہیں تو اس کو سمجھ سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، اور اپنے اپنی زندگی کو اس طرح چلا سکتے ہیں تاکہ خود بھی ہم اچھے طرح زندگی گزاریں اور دوسروں کو بھی اچھی نصیحت کر سکیں، دوسروں کو بھی ہم بھلے باتوں کی طرف بلا سکیں اور بری باتوں سے روک سکیں۔ ہم جانتے ہیں کہ گزشتہ سال سے ہم ایک ایسی حالت سے گرفتار ہیں جو ناگفتہ بات ہے۔ اس حالت سے ہم بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں، اس حالت سے پوری دنیا کے حالات کو بدل چکا ہے۔ اس حالت میں آ کے ہمارا جینا مرنا کی طرح ہو گیا ہے، ہم سانس بھی نہیں لے سکتے ہیں، اگر لیں تو اس کی بھی بہت سارے قوانین ہیں اور اس قوانین کا فالو بھی کرنا ہے۔ وہ کس طرح؟ کچھ لوگ اس مرض کو ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس میں کچھ علماء بھی ہیں جو اپنے آپ کو دین کے ٹھیکیدار کہتے ہیں، یہ بھی اس میں شامل ہیں کہ اس وبا کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ حالانکہ میرا ایک جانی دوست ہے جس کو میں دل سے چاہتا ہوں اور بہت قریبی آدمی ہے، جو سعودیہ میں رہتے ہیں، وہ بھی اس مرض سے گرفتار ہو چکے تھے۔ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی اور انہیں اچھا کر دیا، لہٰذا ہم میں سے ہر کوئی اس مرض کو مانتے ہیں اور ماننا بھی چاہیے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ مصیبت بھیجتا ہے، اس کے بھی کچھ قانون ہے، رولز ہیں، اور کیوں بھیجا جاتا ہے لمبی تفصیل ہے۔ یہ ہمارے ہاتھوں کا کرتوت ہے، ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر گناہ کے بھی دیتا ہے اپنی مومن بندوں کی آزمائش کے لیے، کہ اس بلا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مومن بندہ کو آزماتا ہے۔ جس طرح آپ ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ کو پڑھا ہے، آپ نے سنا ہے
वो नबी थे, उनको भी आजमाया गया। दाऊद अलैहिस्सलाम को ले लीजिए, उनको आजमाया गया। हमारे नबी को ले लीजिए, यहूदियों ने जहर खिला दिया, बाद में उनको तकलीफ हुई। ये बहुत सारे वाक़यात हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि मुसीबत मोमिन बंदे पर अल्लाह ताला नाजिल करता है। उसकी दो वजह होती है, या तो एक वजह ये है कि अल्लाह ताला उस मुसीबत के ज़रिए से उनके गुनाहों को दुनिया ही में माफ़ कर दे और आखिरत में उनके दर्जा को बुलंद कर दे। दूसरी बात यह है कि अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मुझे ये समझ लेना चाहिए कि मुझ पर जो मुसीबत आई है ये हमारे मुस्तकबिल को मुझे संवारने के लिए, मैं अपने आप को हमें बदलने के लिए, अपने आप को चेंज करने के लिए। और ये मौजूदा मुसीबत में हमें जो चलना है फिरना है तो किस तरह चलना है, इसके लिए भी इस्लाम ने रहनुमाई की है। अल्लाह ताला फरमाता है कि वातिउल्लाह व आतिउर रसूल फ़इन तवल्लैतुम फ़इन्नमा अला रसूलिना अल बलागुल मुबीन। ये देखो, दुनिया में तुम ज़िंदगी जियोगे, ज़िंदगी गुजारोगे तो अल्लाह उसके रसूल की इताअत ज़रूरी है। दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है व उलिल अम्र का कभी लफ्ज़ का ऐसा भी क्या है, यानी कुरान हदीस और कुरान हदीस के विश्लेषण करने वाले, इनका अच्छी तरह समझने वाले, यानी उलमा इकराम जो हमारे सलफ़ सालिहीन हैं, जो हमारे सलफ़ के उलमा में से जो सही माना में अहले इल्म है, उन लोगों ने इस हालत में अपनी ज़िंदगी गुजारने के जो कुछ कवानीन दिए हैं, रूल्स दिए हैं, तरीके बतलाए हैं, उनको भी फॉलो करना है। वो क्या कवानीन दिए हैं? उन्होंने ये समझा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी समझाया। अल्लाह ताला ने फरमाया है वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका। अल्लाह ताला कहता है कि अपने आप को हलाकत में मत डालो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ला दरर वला दिरार, ना खुद नुकसान उठाओ ना किसी को नुकसान पहुंचाओ। फिर अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर मिनल मजूम फराका मिनल असद, कोई आदमी कुड़ी कुश्ती वाला हो गया है तो उससे उसी तरह भागो जिस तरह तुम क्या करते हो, शेर और बाघ को देख के भागते हो। अल्लाह के नबी फिर आगे फरमाते हैं कि ला यूरिद मुमरिद अला मुसिब, कोई आदमी बीमार है या कोई जानवर बीमार है तो उस बीमार जानवर को सही जानवर के पास ना बांधो, उसको ना ले जाओ। इसी तरह कोई आदमी बीमार है, और खुसूसन इस वबा में यह हदीस बहुत ही काबिल गौर है कि किसी आदमी को अगर खुदा न खास्ता यह मरज लाहक हो जाए तो ऐसे आदमी को सही आदमियों के पास जाना नहीं चाहिए। अफसोस की बात है कि हमारे इलाके के कुछ लोग कुछ उलमा को फॉलो करते हैं। अच्छी बात है उलमा को फॉलो करना। उन उलमा में से किसी आलिम ने फतवा दे दिया कि मास्क पहनकर नमाज नहीं होगी, और यह जो दूरी हम बरत रहे हैं इस दूरी को बरतते हुए नमाज हो ही नहीं, ये हराम है। नऊजुबिल्लाह। अल्लाह के नबी खुद कह रहे हैं कि तुम सही आदमी को बीमार आदमी के पास ना जाए, बीमार जानवर को सही जानवर के पास ना ले जाए। इस हदीस के ज़रिए से वला तुल्कू बिअयदीकुम इला तहलुका, इस आयत के ज़रिए से हमारे उलमाए सलफ़ ने, उलमाए इस्लाम ने और अहले सुन्नत वल जमा के उलमा ने यह तमाम उसूल बनाए हैं और इन तमाम बातों को अखज़ किए हैं कि उलुल अम्र यानी हुकूमत वाले अगर कुछ कवानीन बनाए हैं इस बीमारी से बचने के लिए, मसलन मास्क पहनना है या 2 गज दूरी इख्तियार करना है या बेगल बेला की किसी वजह से घर से नहीं निकलना है, जो खिलाफ शरीयत बात नहीं है, इन तमाम चीज़ों को हमें फॉलो करना है। और जो कहते हैं कि नमाज नहीं होगी वो गलती पर है, खता पर है, उनको अपने आप की इस्लाह कर लेनी चाहिए। और रही बात हमारी, तो उन तमाम बातिल चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देंगे, बल्कि यही करेंगे जो करने के लिए कहा गया है, यानी मास्क का इस्तेमाल करेंगे नमाज की भी हालत में, बाहर में भी है। घर पे है, फैमिली के आदमी हैं, कोई दूसरा आदमी बाहर से आता जाता नहीं है, उस वक्त ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही आप जाते हैं या आपके पास बाहर का कोई आदमी आता है तो आप मास्क घर में भी इस्तेमाल कीजिए, एक बात। दूसरी बात कि जिस तरह हम नमाज पढ़ेंगे तो दूरी लाजमी है। घर के आदमी है, लेकिन हम में से कोई ना कोई किसी ज़रूरत से बाहर जाते हैं, या तो सब्ज़ी खरीदने के लिए किसी ज़रूरत के बिना पर बाहर जाते ही हैं। इस लिहाजा हमें ये दूरी अपनाना है। और इसके इलाज के लिए जो दवाइयाँ है इसको भी अपना सकते हैं, और शरीयत ने कुछ दुआ भी दिया है। इस दुआ के ज़रिए से भी हम अपना इलाज करा सकते हैं, अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि कोई आदमी अगर मुअव्वज़तैन यानी कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक और कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास,
इन दोनों सूरतों को, हमें सारे को याद है, इन दोनों सूरतों को सुबह शाम या किसी भी वक्त 24 घंटा के अंदर किसी भी वक्त आप ये दिल में अल्लाह से कहिए कि अल्लाह ये बीमारी हमें लाहक ना हो जाए, हमारे परिवार को लाहक ना हो जाए, हमारे इलाके को तू महफूज रखना। इन तमाम बातों को सोचते हुए अल्लाह से आप ये दोनों सूरतों को पढ़िए, यकीनन अल्लाह ताला आपको इस बीमारी से महफूज रखेगा। इसी तरह सुबह शाम की दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाइ वहुवा समीउल अलीम। ये दुआ है, अब नेट से सर्च कर सकते हैं कि सुबह शाम की दुआ क्या है। मौजूदा दौर में तालीम हासिल करना इतना आसान हो गया है, सिर्फ खुद को एक्टिव रखना है कि हाँ हमें किस तरह हासिल करना है। इसी तरह अल्लाह के रसूल दुआ करते थे कि अल्लाह तू हमें जुर्म से बचा, अल्लाह तू हमें बीमारी से बचा। कोई भी दुआ की दो किस्में होती है, एक दुआ है आम, यानी किसी भी लफ्ज के जरिए से आप दुआ कर सकते हैं। मसलन अपनी जुबान से कहते हैं अल्लाह ताला ये जो बीमारी आई हुई है, इस बीमारी को हमारे घर से दूर कर दे, या अल्लाह ये हमारे इस बीमारी को हमारे इलाके से दूर कर दे, या अल्लाह इस बीमारी को हमारे मुल्क से दूर कर दे, या अल्लाह ताला इस बीमारी को पूरी दुनिया से दूर कर दे। ये बीमारी जो आई है इसको दूर कर, और जो मुस्तकबिल में आने वाली है उसको भी तू ना ला, उसको ऊपर ही से तू दूर कर दे। ये आम अल्फाज हो गए, इससे हम दुआ कर सकते हैं। और ख़ास अल्फाज जैसे कि मैंने अभी कहा, इन तमाम दुआओं चीज़ों के जरिए से अगर अल्लाह ताला से हम दुआ करेंगे तो यकीनन अल्लाह ताला हमें महफूज रखेगा। उसके बावजूद भी अगर हमें यह बीमारी लाहिक हो जाती है, यानी तमाम तरह के वसाइल को अपनाने के बाद भी अगर यह बीमारी हमें लग जाती है तो ये है अल्लाह की तकदीर पर कामिल यकीन कि मैंने बचने की कोशिश की, उसके बावजूद भी बीमारी लग गई तो समझ लीजिए कि अल्लाह ने मेरे और आपके लिए लिख ही दिया था तकदीर में कि ये बीमारी तुम्हें लाहिक होने वाली है, और इसके जरिए से या तो तुम दोबारा जियोगे या मर जाओगे। ये अल्लाह ताला की तकदीर है जिस पर हमें कामिल यकीन रखना है। लिहाजा मैं आखिर में दुआ करूँगा, अल्लाह ताला तो हम तमाम हाज़रीन को इस बीमारी से महफूज रखना। ये अल्लाह ताला हम तमाम हाज़रीन के जो खैश व अकारिब हैं, रिश्तेदार हैं, माँ बाप है, दादा दादी, चाचा चाची, नाना वगैरह हैं, इन तमाम लोगों को तो महफूज रखना। ये अल्लाह ताला जिस इलाके में हम जी रहे हैं इन तमाम इलाका के लोगों को तो महफूज रखना। ये अल्लाह ताला दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं इन तमाम मुस्लिम ममालिक को तू इस बीमारी से महफूज रखना। अल्लाह ताला इस रुए ज़मीन के अंदर जितने भी देश हैं, चाहे वो किसी का भी देश हो, अल्लाह ताला तो उस देश को इस बीमारी से महफूज रखना। और खुसूसन आज जिन लोगों पर जुल्म हो रहा है अल्लाह तू देख रहा है, समझ रहा है हकीकत क्या है, वजह क्या है कि वो मजलूम है, तू हमसे ज़्यादा जानता है। अल्लाह ताला उन मजलूमीन की तू मदद करना। आमीन या रब्बल आलमीन।